دل سے آ رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے؟ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، چاہے وہ کور کمانڈر ہاؤس ہو، چاہے وہ کسی بھی انسٹالیشن پہ ہو، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آنی چاہیے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج آج قوم کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ نہ صرف سی سی ٹی وی فوٹیج میں آپ دیکھ سکیں گے ان کے لوگوں کو، ان کو سن سکیں گے کہ ان کے اپنے لوگ تھے۔ تو کوئی کسی کا انتظار نہ کرے، آپ کو جگہ بتائی گئی ہے۔ کور کمانڈر کی طرف جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ جی ایچ کیو جائیں گے اللہ۔ ایک طرف کہانیاں ہیں جو پی ٹی آئی اپنے سپورٹرز کو سوشل میڈیا کے ذریعے دن رات سناتی رہتی ہے۔ ان کہانیوں میں ان کا کپتان ڈٹ کر کھڑا ہے اور سب کی منتوں کے باوجود ڈیل کرنے کو تیار نہیں۔ اور تو اور 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس کا مقصد پی ٹی آئی کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانا تھا۔ ایک طرف یہ کہانیاں ہیں اور دوسری طرف وہ سچ ہے، وہ سچ جسے سننے کے لیے پی ٹی آئی کے ہمدرد اور کلٹ فالوئنگ بالکل تیار نہیں۔ اور وہ سچ یہ ہے کہ سانحہ 9 مئی بانی پی ٹی آئی اور ان کے قریب ترین رہنماؤں کی پری پلانڈ منصوبے کا نتیجہ تھا۔ جی ہاں، حکومت نے بانی چیئرمین اور پوری تحریک انصاف کی پرزور فرمائش پر سانحہ 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز جاری کر دی ہیں۔ تمام فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے پی ٹی آئی کے لوگ، جس میں خواتین تک شامل تھیں، فوجی املاک پر حملہ آور ہوئے اور ہاتھ آنے والی ہر چیز یا ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز میں خواتین جس طرح سے جلاؤ گھراؤ میں نہ صرف شامل ہیں بلکہ پیش پیش دکھائی دے رہی ہیں، وہ دیکھنے کے بعد ان گرفتار خواتین کے رونے دھونے سے بالکل بھی ہمدردی نہیں رہی۔ حملہ کرتے وقت انہیں اپنے عورت ہونے کا احساس نہیں تھا، مگر آج قانون کا سامنا کرتے ہوئے عورت کارڈ کھیلا جا رہا ہے۔ وکٹم کارڈ کھیلنے والی یہ پی ٹی آئی سی سی ٹی وی فوٹیجز میں مظلوم نہیں، ظالم دکھائی دے رہی ہے۔ ثابت ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے فوجی املاک پر بلا اشتعال حملے کیے، گیٹ توڑے گئے اور شہداء کے مجسموں کی بے حرمتی کی گئی۔ اس موقع پر موجود تمام رہنما جلتی پر آگ کا کام کرتے رہے اور لوگوں کو روکنے کے بجائے آگے بڑھنے کا حکم دیتے رہے۔ حکومت کی جاری کردہ یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز سب کو دیکھنی چاہیے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ سیاست کی آڑ میں پی ٹی آئی کا اصل چہرہ اور کردار کیا ہے۔ کلٹ فالوورز کے علاوہ پوری قوم جانتی اور مانتی ہے کہ سانحہ 9 مئی فالس فلیگ آپریشن ہرگز نہیں تھا۔ یہ پی ٹی آئی کی سوچی سمجھی ایک گھناؤنی سازش تھی اور ہدف وہ ادارہ تھا جو اس ملک کی بقا کا ضامن ہے۔ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین ہوں یا پارٹی کے سینئر رہنما، سب جانتے ہیں، جی ہاں سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کچھ مہینوں سے منت ترلوں پر اتر آئے ہیں۔ صلح کے پیغام بھیجے جا رہے ہیں، دہائیاں دی جا رہی ہیں کہ انہیں بس کسی طرح سے این آر او دے دیا جائے۔ جی ہاں، وہ جو ڈٹ کر کھڑا تھا نا کپتان، آج ڈھٹائی سے بول رہا ہے کہ میں ڈیل کے لیے تیار ہوں۔ آگے سے شارٹ اینڈ سویٹ جواب یہ ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں۔ چھٹے کورے جواب کے بعد اب تحریک انصاف نے اندرونی اور بیرونی دباؤ ایک ساتھ ڈالنے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ بیرونی دباؤ کے لیے ٹرمپ کارڈ استعمال کیا جائے گا۔ اپنے اس ٹرمپ کو لبھانے کے لیے کوئی 1 کروڑ روپے ماہانہ فیس پر امریکہ میں ایک لابنگ فرم ہائر کی گئی ہے تاکہ انہیں پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے منایا جا سکے۔ اندرونی دباؤ ڈالنے کے لیے پاکستان میں 24 نومبر کو پرتشدد دھرنے کی کال دے دی گئی ہے۔ ریاست کے خلاف الجہاد الجہاد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں سرکاری وسائل سے سرکار کے خلاف ہی جہاد کرنے نکلے ہیں۔ مقصد صرف اور صرف اپنے بانی چیئرمین کے لیے حکومت اور اداروں کو بلیک میل کر کے این آر او لینا ہے اور انہیں جیل سے رہا کرانا ہے۔ بانی پی ٹی آئی ڈیل کے لیے کتنے ڈیسپریٹ ہیں اس کی گواہی بانی پی ٹی آئی کے پسندیدہ ترین ملک کی پسندیدہ ترین اخبار دی گارڈین بھی دے رہا ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق گرفتار بانی پی ٹی آئی کی خواہش کے باوجود اسٹیبلشمنٹ ان سے مذاکرات یا ڈیل کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ بانی پی ٹی آئی کئی بار اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں، مگر ہر بار دھو ٹوک انکار ہی ملا ہے۔
برطانوی اخبار نے اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کو ان کی قانونی ٹیم کے ذریعے سوال نامہ ارسال کیا تھا، جس کے جواب میں بانی پی ٹی آئی نے بتایا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے معاہدہ کرنے سے انکار نہیں کریں گے۔ باخبر ذرائع کے مطابق پچھلے کچھ ماہ سے بانی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں اور غیر مشروط مذاکرات کی پیشکش کر چکے ہیں، جس میں انہوں نے اپنی رہائی یقینی بنانے کے لیے ایک ڈیل کی درخواست کی تھی، مگر اسٹیبلشمنٹ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات سے انکاری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اپنے خلاف مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا اور انہیں اسٹیبلشمنٹ سے کسی معاہدے کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں کہ ہر کوئی قانون کی حکمرانی پر عمل کرے، لیکن وہ اپنے لیے قانون کی یہ حکمرانی نہیں چاہتے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بھی تحریک انصاف سے متعلق دعویٰ کیا ہے کہ ان کی طرف سے بیرونی مداخلت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان نے بھی امریکی ارکان کانگریس کے خط کو پاکستان کے داخلی معاملات میں واضح مداخلت قرار دیا ہے۔ امریکی کانگریس کے 46 ارکان ایک بار پھر بانی پی ٹی آئی کی حمایت میں سامنے آ گئے ہیں۔ امریکی صدر کو ایک اور خط لکھ کر بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کانگریس کے جن 46 ارکان نے امریکی صدر سے مداخلت کا مطالبہ کیا ہے نا، ان میں اکثریت کا تعلق یہودی مذہب سے ہے۔ یہاں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ جن امریکی ارکان کانگریس کو فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر اسرائیلی جارحیت نظر نہیں آتی، انہیں اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کیوں بار بار یاد آ جاتا ہے؟ ان کے انسانی ہمدردی کا سارا جذبہ پوری دنیا کو چھوڑ کر صرف بانی پی ٹی آئی کے لیے کیوں جاگ جاتا ہے؟ ملین ڈالر کوسچن تو یہ بھی ہے کہ یہ اندرونی اور بیرونی دباؤ ایک ساتھ ڈلوانے کی اسٹریٹجی بانی پی ٹی آئی کے لیے فائدہ مند ہوگی یا پھر 24 نومبر کی فائنل کال مس کال ثابت ہوگی اور پی ٹی آئی کا برا وقت مزید برا ہو جائے گا؟ آنے والے دن پی ٹی آئی کے لیے کیسے ہوں گے، پاکستان کی سیاست کے لیے کیسے ہوں گے، اسی پر آج ہم سیدھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم جی، بریک کے بعد آپ لوگ کو خدید کہتے ہیں۔ پریسٹیجیس پینلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں جی، سٹارٹنگ فرام غوث خان نیازی صاحب، رہنما ہیں نون لیگ کے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے۔ میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں جی رضا ہارون صاحب، رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے۔ اور میرا ساتھ دیں گے جی آج کے شو میں عالمگیر خان صاحب، رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ عالمگیر خان صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ ہیون سیڈ دیٹ، ابتدائیہ تو ڈیفینیٹلی عالمگیر خان صاحب آپ نے بھی سنا ہے، تو میں سیدھا سوال ہی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ آپ لوگوں کی پرزور فرمائش تھی، آپ لوگوں کی خواہش تھی، بار بار جسے دیکھے جب سے 9 مئی ہوا تب سے یہی کہا جا رہا تھا بھئی ایک دفعہ بس فوٹیجز تو ریلیز کریں، بھئی فوٹیجز تو ریلیز کریں۔ بالآخر آپ کی خواہش یہ پوری ہو گئی اور ہم نے دیکھا کہ جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے جو فوٹیجز ہیں وہ ریلیز کر دی۔ وہ ریلیز کیا ہونی تھی سر؟ آپ سب لوگوں نے تو کلیکٹیولی ہلا بول دیا، کسی نے دیکھا نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، آپ نے تو جو آپ کو نظر آیا آپ لوگوں نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی، آپ نے ایسی تیسی پھیر دی ملک کی۔ سر مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو آپ کا مطالبہ ہے جس کو مان لیا ہے حکومت نے، اس کے بعد تو آپ لوگ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں، اب تو بڑی سخت قسم کی کارروائیاں ہوں گی آپ کے خلاف سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے تو میرے علم میں نہیں تھا کہ ایسی سی سی ٹی وی فوٹیجز کو انہوں نے جاری کر دی ہے، لیکن آپ کہہ رہی ہے اور ایسی کوئی پریس کانفرنس ہوئی ہے تو 100 بسم اللہ اس کو جو ہے وہ جوڈیشل پروسیس کا حصہ بنایا جائے اور جو بھی لوگ انوالو ہیں اس کے خلاف۔ لیکن دیکھیں، ہماری خواہشات آپ پوری کر تو رہے، لیکن ہماری یہ ہے کہ جن لوگوں نے پریس کانفرنس کر کے تحریک انصاف کو چھوڑا، چاہے کسی دباؤ میں یا کسی خواہش میں، چاہے وہ آئی پی پی کا حصہ بنے الیکشن سے پہلے اور تحریک انصاف کے خلاف الیکشن لڑا، ان سب کو بھی 9 مئی کے کیسز میں برابر کے سزا ان کو دی جائے، ان کے خلاف بھی کیسز بنائے جائے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ 9 مئی کے دن ایک ہی گاڑی میں ایک ہی مقام پر اندلیب عباس گاڑی کے باہر سپیکر پر بات کر رہی ہوتی، ان کو رہا کر دیا جاتا اور ختیجہ شاہ کو جو ہے وہ مہینوں سالوں جو ہے قید کیا جاتا، کیونکہ وہ تحریک انصاف چھوڑنے سے انکار کر دیتی۔ جو تحریک انصاف چھوڑتا وہ 9 مئی کے تمام الزامات سے بری الزما ہو جاتا، وہ پھر نہ دہشت گرد ہوتا، اس کو کلین چٹ مل جاتی، وہ دودھ کا دلہا ہو جاتا۔ تو یہ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ جہاں آپ ہمیں یہ اس پارٹی کو ختم کرنے کے لیے یہ سارا یہ پلان بنایا گیا،
इलेक्शन से बाहर करने के लिए प्लान बनाया गया, हमारे लोगों को तोड़ने के लिए प्लान बनाया गया, हमारे कायद इमरान खान को जेल में डालने के लिए प्लान बनाया गया। तो हमने तो जो सीरीज ऑफ इवेंट, सीरीज ऑफ एक्शंस हुए पोस्ट 9 मई, उससे तो हमने यही अखज़ किया। रही बात अब आलमगीर खान साहब, ये प्लान बनाया गया आप लोगों के खिलाफ, मतलब कि कोई जबरदस्ती पकड़ के लेके गया था, कोई गन पॉइंट पे लेके गया था कि जी GHQ चलें, फौजी तनसीबात पर हमला करें, कोर कमांडर लाहौर के घर पे हमला करें? एंड सेकेंडली सर, प्लीज डोंट माइंड मी सेइंग दिस, आप अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ रेगुलरली सीधी बात के शोज कर रहे हैं सर, आपकी तो अभी तक मैंने फिलहाल कोई फुटेज नहीं देखी, लेकिन आपको तो किसी ने तंग नहीं किया, आपके नाम के साथ तो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगा हुआ है। ये जब आप कहते हैं ना कि जी प्लान किया गया, ये CCTV फुटेजेस के बाद ये प्लान वाले जो भोंडी एक्सक्यूज है ना, ये आप मत करें। हाँ, एक प्लानिंग जरूर हुई है सर, और वो प्लानिंग आपके बानी चेयरमैन ने की है। मुझे ये बताएं कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ गए, उनके खिलाफ केसेस क्यों नहीं बने, वो क्यों आजाद हो गए? वो तो सर बात की बात है ना, आप पहले फुटेजेस तो देखें, फुटेजेस के ऊपर तो आप मुझे बताइए कि 9 मई के ऊपर तो बात करें ना, कि आप जब कहते हैं कि प्लान किया है या हमारे लीडर के खिलाफ प्लानिंग है, हमारी पार्टी के खिलाफ प्लानिंग है, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि 9 मई की जो मैं फुटेजेस देख रही हूँ, उन लोगों को कौन जबरदस्ती लेकर गया है हमला कराने के लिए? इलेक्शन लड़ने से इनकार करते, जो पार्टी छोड़ते, जो सियासत छोड़ते, उनके खिलाफ केसेस खत्म हो जाते। इसका जवाब दे दे मुझे। और हमने डिमांड की थी जुडिशल कमीशन बनाने की। खैर, अब तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद क्या जुडिशल कमीशन, क्या जुडिशरी, वो सब अगेन आलमगीर खान साहब, यू आर माय डियर ब्रदर सर, यू आर माय डियर ब्रदर, लेकिन यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टेप 2 ना, आप उसके आफ्टर मैथ पे चले गए। मैं अभी तक आई जस्ट वांट टू स्टिक टू 9th of May ना, जिसको आप बार-बार 9 मई CCTV फुटेजेस, आपकी फरमाइश निकालो जी, ये साजिश है, ये अब CCTV फुटेज आ गई, या तो मुझे बता दें उसका ये हिस्सा जो है एडिटेड है, प्लांटेड है, AI से बनाया गया है, आप उसको डिनाई भी नहीं कर रहे हैं, और फिर लेकिन उसके ऊपर ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और PTI को छोड़ा, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। सर वो तो बाद में हो रहा है ना। 9 मई वाले दिन क्या हुआ? 9 मई वाले दिन किसने आपको कहा कि आप लोग जाएं और GHQ के ऊपर हमला करें? मोहतरमा, इत्मीनान से सुन ले प्लीज। जी सर। सबसे बड़े विक्टिम 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ रही है, क्योंकि इस पार्टी को तबाह बखेड़ा, इसका हुलिया बिगाड़ दिया। ओके। और डिमांड कर रहे हैं बीइंग विक्टिम के CCTV फुटेजेस जारी की जाए और जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए ताकि ठीक है। जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको सजाएं दी जाए। लेकिन अगर किसी ने, मैं आज क्लेम करता हूं, किसी लीडरशिप की जानिब से ये नहीं कहा गया था कि आप वहां तोड़ फोड़ करें, वायलेंस करें, किसी सरकारी या किसी फौजी तनसीबात पर हमला आवर हो, किसी सूरत ये अहकामात नहीं थे, किसी को ये हिदायत नहीं, चेयरमैन इमरान खान से लेके निचली सतह तक। अगर ये किसी ने किया जो पार्टी पॉलिसी की वायलेशन की, तो मैं यही कह रहा हूं कि आप जुडिशल कमीशन तो बनाएं, आप जुडिशल प्रोसेस फॉलो करते हुए सजाएं दें, जुडिशरी तय करे कि नहीं तो भाई आलमगीर खान साहब, ये हम क्यों बनाए जुडिशल कमीशन या हुकूमत क्यों बनाए? सबसे पहले अगर जो आप बात कर रहे हैं कि जिसने किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो, पहले पार्टी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। मुराद सईद को तो ऐसे आपने नन्ना काका बना के संभाला हुआ है जैसे कि पता नहीं वो किधर है, निकाले उनको बाहर, अपने चेयरमैन से कहें कि उसको पार्टी से जो है वो बिल्कुल बाहर करे। जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, पहले आप तो एक्शन ले, आप अपनी पार्टी के बारे में सोचेंगे तो फिर ही ना। ये काम भी आपने विफाक के ऊपर डाल दी, ये काम भी आपने हुकूमत पे डाल दी, ये काम भी जुडिशरी पे डाल दिया है कि जी वो उसका बनाए। मैं जरा वापस आती हूँ, लेट्स लिसन टू योर कॉलीग्स, आपके कॉलीग्स क्या कहते हैं आपके बारे में। रज़ा हारून साहब, बात तो फिर वही आ गई, फुटेजेस भी आ गई, CCTV फुटेज एक्सटेंड रिलीज भी हो गई, लेकिन बात वही है, मैं ना मानूं, ये फिर साजिश है, ऐसे हो गया तो वैसे हो गया। ना ये मान रहे हैं, ना ये इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इनसे गलती हुई है, और जब तक ये मानेंगे नहीं तो तब तक उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? ये तो बात ऐसे ही चलती रहेगी जो इतनी देर से चलती चली आ रही है। 9 मई जो है एक इंसिडेंट है, एक हकीकत है, और उस रोज रियासती इदारों के दफातर, इंस्टॉलेशंस और रेडियो पाकिस्तान पर हमला हुआ जी। एक साथ पाकिस्तान भर में हुआ, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हुआ, और बानी PTI सहाफियों से बात करते हुए 2 से ज़ायद मरतबा कह चुके हैं कि मैंने कहा था मेरी गिरफ्तारी की सूरत में GHQ के बाहर जाके मुजाहरा करो। वो इसका कन्फेशन कर चुके हैं, ये रिकॉर्ड की बात है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। अब जब आप ये सोचें कि जब अरेस्ट के ऊपर आप अपनी पार्टी को, जिसकी के एक मास फॉलोइंग है, उसको आप ये हिदायत दे दें, तो
तो इंस्टिगेशन, इंसाइटमेंट आपने कर दी, उसके बाद इंसिडेंट हो गया, तो इंसाइटमेंट का चार्ज और उसकी जिम्मेदारी आपके कांधों पे आएगी क्योंकि आप पॉलिटिकल लीडर हैं। फिर आग लगी, तोड़फोड़ हुई और हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे आर्मी के ऑफिसेस को, कोर कमांडर हाउस को, जो है कराची में रेंजर्स की चौकी को, इस तरह की चीजों को टारगेट करके निशाना बनाया गया। पीटीआई के लोग थे, उसकी फुटेजेस मौजूद हैं। फैसला जुडिशियल कमीशन नहीं होता, क्राइम के लिए जुडिशियल कमीशन नहीं बनाया जाता सर। क्राइम के लिए ये क्राइम है, ये टेररिज्म है, वायलेंस का क्राइम है। इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, इसकी प्रोसिक्यूशन होगी और उसका नॉर्मल अदालतों में या मिलिट्री अदालतों में जो भी फैसला होता है वहां पे इसकी फैसले होंगे। ये जुडिशियल कमीशन जो है तो किसी साजिश के लिए बनता है कि नेशनल इश्यू के लिए बनता है। दिस इज अ पेटी क्राइम, स्ट्रीट क्राइम है जो कमिट हुआ है और उसकी एक्सेप्टेंस है, कन्फेशन है। और आप ये देखें ना कि मेरे भाई कह रहे हैं कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ दी उन पर केस बना दें। क्यों? वो इन्वॉल्व है। बताओ ना यार, वो इन्वॉल्व हैं, आप इन्वॉल्व हो तो उनके ऊपर भी केस बन जाएगा, आप पे भी केस बन जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि ये 9 मई का इंसिडेंट जो है ये इनसे गलती हो गई है। हालांकि मैंने उसके अलावा भी जो मैंने डीजी आईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, काफी अर्से पहले की बात है, कि इसकी रियलाइजेशन करके माफी मांग के आगे बढ़ने का कोई जरिया निकालना चाहिए। इस पे हटदर्मी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसके तो विजुअल्स हमारे सामने मौजूद है ना, सीसीटीवी फुटेजेस पहले दिन से हमारे सामने मौजूद है, इंसाइटमेंट के बयानात मौजूद हैं। फिर बानी पीटीआई का खुद आके कह देना कि अब मुझे बताएं ना कि जिन लोगों ने अरेस्ट किया था, अगर हम मान भी लें कि रेंजर्स ने अरेस्ट किया, तो रेंजर्स जो है ना बीनिश, वो आती है फेडरल इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर, वो कोर कमांडर के अंडर नहीं आती है। तो आप वहां क्या करने चले गए थे? आप चले जाते प्रेस क्लब पे मुजाहरा कर लेते, आप चले जाते हाई कोर्ट के बाहर मुजाहरा कर लेते, आप चले जाते वजीर आजम के घर के बाहर, सदर के बाहर डी चौक पर मुजाहरा करते। आप पूरे मुल्क में एक साथ आर्मी इंस्टॉलेशंस पर ही क्यों गए? इसका मतलब है प्री प्लान था, इसका मतलब है कि जो कुछ भी हुआ वो एक प्लानिंग का हिस्सा था, साजिश थी, तय था, माइंडसेट रेडी था, बयानात मौजूद हैं, रिकॉर्ड पर वाकयात मौजूद हैं, उसकी फुटेजेस मौजूद हैं और फुटेजेस को बानी के बयान से लाजमी तौर पे जोड़ा जाएगा। अब ये देखना हमारा फर्ज है कि ये चीजें अदालतों के जरिए इसकी प्रोसिक्यूशन हो जाए। और प्रोसिक्यूशन का अमल क्यों सुस्त है? हुकूमत को इस पे तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, रजा भाई इसको यहीं पे होल्ड करें, ये जो हुकूमत को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। एंड देन मैं तो एक स्टेप आगे जाके कि आर्मी एक्ट के तहत क्यों नहीं कार्रवाइयां हो रही, ये सारी चीजें हम जरा पूछते हैं। मेरे साथ रहेगा, इसका जवाब मैं यहीं पे ले देती हूँ। आलमगीर खान साहब भी आई एम श्योर के वेट कर रहे होंगे कि भाई नाउ व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। तो गौस खान नियाजी साहब, नंबर 1 कि जिस तरह रजा भाई ने बड़ी क्लियरली ये कहा कि प्रोसिक्यूशन इतनी कमज़ोर, इतनी स्लो क्यों है? अब तो हुकूमती सतह के ऊपर, हुकूमती सतह भी बल्कि मैं क्या बोल रही हूँ, हुकूमत ही तो ये फुटेजेस रिलीज कर रही है इनकी भरपूर फरमाइश पे, और उनके रिलीज के बाद किसी को रत्ती भर भी अब इबाम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कौन था, कहाँ था, क्या कर रहा था। इट इज़ ऑल एविडेंट। लेकिन द क्वेश्चन इज कि अदालतों में आप इसको अब कैसे साबित करेंगे, प्रोसिक्यूशन को फास्ट कैसे करेंगे, आर्मी एक्ट लगेगा नहीं लगेगा, इस सब के ऊपर सर मुझे जवाब चाहिए। लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नियाज साहब, बस आके मैं आपसे इसका जवाब लूंगी। विल बी बैक। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। पैनलिस्ट बने में मेरे साथ गौस खान नियाजी साहब हैं नून लीग से, रजा हारून साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, एंड आलमगीर खान साहब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जी नियाज साहब, आपने जवाब तैयार कर लिया तो ज़रा समझा दीजिए, मेरी बात तो समझ नहीं आ रही आलमगीर खान साहब को। बता दीजिए अब क्या करना है, हुकूमत ने क्या लाहे अमल होगा, हाउ यू हैव टू प्रोसीड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जी बिल्कुल, आपका शुक्रिया। बिल्कुल प्रोसिक्यूशन जल्दी होना चाहिए और उनको बाकायदा सज़ा मिलनी चाहिए, और उसकी माना जो केसेस वगैरह तैयार हो गए हैं इंशाल्लाह जल्दी शुरू हो जाएंगे। इससे पहले हमने 26वीं तरमीम मुकम्मल की और कुछ लोगों का ख्याल है कि 27वीं तरमीम भी मुकम्मल हो जाए और उसके बाद इसका जो ट्रायल जो शुरू की जाए, कि सारी इन्वेस्टिगेशन विद ऑडियोज वीडियो सब कुछ तैयार है। अब देखा ये भी देखा जाता है कि हमारी प्रायोरिटी जो है ना, हमारा मुल्क है, हमारी रियासत है, हमारी मुईशत है,
वो भी हम चाहते हैं कि वो सही में चले, मुल्क में अनसर्टी ना हो। और उसके लिए हम देखो इन्होंने तो हम तो सारा ये जिस 26वीं तकरीम पास हुई और उसकी वहाँ पीटीआई की लीडर ने आपके कहा था कि हमें आपके शिकों पे कोई इतराज़ या फलाफा निकाल दें। देखो उस वक्त हम एक कदम 2 कदम पीछे हट गए थे कि शायद ये राय रास्त अगर आ रहे हैं, अगर ये सिस्टम के साथ चलना चाहते हैं तो ठीक है, इससे शायद सिस्टम में स्टेबिलिटी आ जाए। फिर हम पीछे हट गए थे और वो जो मुताबिक शिकायतें हम निकाल दी हैं। लेकिन हमने देखा कि इनका तर्ज अमल अभी तक हुई है, लेकिन वो डील चाहते हैं। उनका मकसद ये है, आज ही जो गंडापुर साहब ने बयान दिया है कि जी 24 नवंबर को, तो अगर मैं उस पर भी बात करने को तैयार हूँ। मतलब ये है कि ये डील चाहते हैं कि खान साहब को बाहर निकाला जाए, खान साहब को सजाएं माफ की जाए। भाई सजाएं माफ तो कोर्ट्स ने करनी है, कोर्ट्स ने डिसीजन देना है, कोर्ट्स अपने आप को साफ करें। ये हमें जो ब्लेम करते हैं कि हुकूमत ये कर रही है, हम कुछ नहीं कर रहे। हमने तो इदारे अपना रास्ता, जो कानून अपना रास्ता अपना रहा है, और फिर उसके बाद कानून जो सजाएं देगा उसके अमल किया जाएगा। और हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि इनको सजाएं मिले या ये खूह खाते में जाए या इनको लटकाया जाए। हमारी जो प्रायोरिटी है वो है ना पाकिस्तान है, रियासत पाकिस्तान है। ये आपके लिए भी एक अलार्मिंग चीज़ होनी चाहिए, जिस तरह से आप इस चीज़ को मान भी रहे हैं, हमें बता भी रहे हैं कि बानी जो पीटीआई हैं उनकी अप्रोच ये है कि भाई उनको इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करनी है एंड ही इज़ अप फॉर द डील, उनको चाहिए ये डील। तो सर ये आपके मामला तो अंडर कंट्रोल है ना, जब आपको पता है कि सब कुछ हो रहा है और जो बानी पीटीआई हैं वो ये करना चाहते हैं, तो आपने चीज़ें अपने हाथ में रखी हुई हैं कि नहीं? नहीं देखो, हम तो उस पे बानी पीटीआई पे कोई भी ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। इवन फजल रहमान जैसे बंदे वो भी पीछे हट गए हैं। और जब फजल रहमान साहब पे कहा गया कि आप जाएं और जेल में मुलाकात करें पीटीआई के लोगों ने कहा, तो इस तरह कोई ना कोई रास्ता बन जाएगा। तो फजल रहमान साहब ने कहा कि आप में से कोई, अगर मैं ठीक है मैं जाता हूँ और कुछ चीज़ है मैं कर भी दूँ, तो आप कोई ऐसा बंदा है जो गारंटी दे कि जो बानी पीटीआई उस पर कायम रहेगा। तो सबके मुंह लटक गए। तो पूरी इंटरनेशनल जितनी हमारे जो दोस्त इस्लामी दोस्त ममालिक हैं वो भी कोई इनकी गारंटी देने को तैयार नहीं है। इतने मतलब नॉन ट्रस्टेबल लोग हो जाते हैं, इनकी क्या तदबीर कुछ भी, 100 बयान कुछ होता है, शाम कुछ होता है। अभी आपने खुद ही बयान दिया कि चकजई साहब को जब इन्होंने जिम्मेदारी सौंपी कि आप मुज़ाकरात करें, और नेक्स्ट डे क्या हुआ कि जी जो इन्होंने बयान दे दिया बानी साहब ने कि जी जो जगजई साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं वो अपने बयान पे कर रहे हैं, हमारा तो कोई तल्लुक नहीं है। ये ऐसे गंदे लोग हैं, इनके साथ कोई डील भी नहीं है और ना एस्टेब्लिशमेंट करना चाहती है, ये खुद करना चाहते हैं कि हमें रास्ता दिया जाए। उनकी डील क्या है कि हमें पता है कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं करना चाहती, उसके अंदर तो शुक्रिया एस्टैब्लिशमेंट का करना चाहिए ना। बट यू पीपल, व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज कि आप लोग तो फेंस पर होंगे ना कि भाई अगर इरादा बदल गया तो फिर खान साहब की डील होगी तो फिर तो आपके लिए मुश्किल होगी। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट यू। आप लोगों ने तो अपना होमवर्क तैयार किया हुआ है ना, आप लोगों ने तो अपनी चीजें सेट की हुई है ना। दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। ठीक है, बिल्कुल। देखो हम तो इक़्तिदार में आए तो हमने इनको कहा था कि चलो हम मानते हैं कि आपकी सीटें ज्यादा हैं, आप किसी पार्टी को साथ मिला के खुद मिला लें। हमने तो पेशकश की थी, लेकिन ये खुद पीछे हट गए थे। वो कहते थे नहीं जी वो हम जो इनका ये कहना है कि हमारा बयानिया ये है कि मुस्लिम यूनियन और पीपल्स पार्टी दोनों करप्ट हैं, हम इनके साथ नहीं चल सकते। अगर उनके साथ इत्तेहाद कर लें तो फिर हमारी बयानिया गलत हो जाता है। और बयानिया के पास है नहीं, कोई कारकर्दगी है नहीं। 4.5 साल ये वफाक में की है, सूबों में की है, 11-12 सालों में क्या कुछ किया है। कारकर्दगी का तो खैर ऑफ कोर्स वाकई कोई नहीं है, लेकिन बयानिया सर बहुत ज़्यादा हैं और बयानिया बनाने भी उनको बहुत ज़्यादा आता है। अभी देखना, अभी मैं आलमगीर खान साहब के पास जाऊंगी, उन्होंने अभी ऐसा बयानिया आपको देना है इस डील वाली बात के ऊपर। आलमगीर खान साहब, आपने कहा कि आपने सीसीटीवी फुटेजेस नहीं देखी, फाइन, आई एग्री, नहीं देखी होंगी, यू आर अ बिजी मैन। बट आपने गार्डियन के अंदर जो बानी पीटीआई हैं उनका इंटरव्यू ज़रूर पढ़ा होगा। चले, अगर वो भी नहीं पढ़ा तो आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आपको हाइलाइट्स तो पता चल गई होंगी ना कि बानी पीटीआई ने गार्डियन को जो सवालनामा उन्होंने दिया था उन्होंने क्या क्या लिखा। उसके अंदर वो क्लियरली कैटेगोरिकली ये बोल रहे हैं कि ही इज अप, ही इज रेडी फॉर द डील। वो बातचीत के लिए तैयार है, मुज़ाकरात के लिए तैयार है। किसके साथ? एस्टैब्लिशमेंट के साथ। लेकिन आगे एस्टैब्लिशमेंट उनसे बात ही नहीं कर रही है। तो सर मैं ये समझती हूँ कि ये आपके, मैं अपनी आम पाकिस्तानी की बात नहीं करी, मैं उन पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ जो आपके फॉलोवर्स हैं, जो आपके सपोर्टर्स हैं। ये उनके साथ आपकी बददयानती है कि आप एक तरफ उनको कहते हैं कि जी
ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا, کیا نون لیگ, کیا پیپلز پارٹی, کیا اسٹیبلشمنٹ. لیکن ساتھ ہی آپ گارڈین اخبار کے اندر جو ہے یہ سوال کے جواب کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نو یو آر اپ فار اٹ, نہیں بس ایک دفعہ مجھے آپ بات کر لیں میرے ساتھ, ایک دفعہ آپ ڈیل کر لیں, آپ کو کوئی قباحت نہیں ہے. محترمہ, میں ہر بات کا جواب دوں گا, لیکن ایک ریکویسٹ ہے, ایک عرض ہے, اگر آپ برا نہ مانیں تو میں بولوں, برا مانیں گی پھر نہیں بولوں گا. یہ تو سر آپ بولیں گے تو مجھے پتا چلے گا نا کہ میرا ریاکشن کیا ہوگا. میں پہلے پی ٹی آئی تھوڑی ہوں کہ میں پہلے سے بتا دوں کہ اس کے اوپر اب میں نے یہ کرنا ہے. یہ تو آپ بتائیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ اچھا لگا بات کہ بری لگی. چلے اچھی یا بری میں کہہ دیتا ہوں, خدا را فریق نہ بنے. آپ پی ٹی وی تک پہنچ گئی ہیں, بس کافی ہے, اب تو رحم کر لیں, اپنی نوکری پر رحم کریں. ٹھیک ہے سر. سر میں فریق نہیں بنی, اسی لیے عالمگیر خان صاحب آپ جو ہے اس شو کا حصہ ہے. سر جواب تو لے لے, آپ ہی کے ساتھ ہوں, آپ کو پورا موقع دوں گی جواب کر دینے کا. عالمگیر خان صاحب تھوڑا سا لقمہ لے لیں. آپ نے مجھے کہا فریق نہ بنے, پاکستان کے لیے تو میں فریق بنوں گی نا, آئی ایم ایکول پاکستانی. لیکن اگر آپ سیاسی طور پر بات کرتے ہیں نا, میں فریق نہیں ہوں, اسی لیے آپ اس پینل کا, اس شو کا حصہ, اور پی ٹی آئی اس شو کا حصہ رہے گی جب تک یہ شو پی ٹی وی پہ چلے گا. جی سر بتائیے. جی سر. پاکستان میں رہتے ہیں, ہم بھی پاکستانی ہیں, صرف نون لیگ پاکستان نہیں ہے. آپ پی ٹی وی تک پہنچ گئی ہیں, بس کافی ہے. میں یہ عرض کروں سر, میں تو آپ کو بھی لے آئی ہوں. آپ اس سے پہلے کب آئے تھے پی ٹی وی پہ؟ لاسٹ شو اپنا بتائیے. میں آئی ہوں تو آپ کو لے کر آئی ہوں نا. میں یہ عرض کروں کہ گارڈین ہو یا کوئی بھی ہو, اس کی انٹرپریٹیشن مجھے کرنے دینا, آپ نہیں کریں. آپ اینکر ہیں, سوال کریں, آپ انٹرپریٹ نہ کریں نا اس کو. سر انٹرپریٹیشن نہیں, انہوں نے سوال کے جواب میں کہا ہے. اچھا خیر, آپ اپنی بات مکمل کریں سر, چلیں کر لیں آپ. 24 تاریخ کو لانگ مارچ کا اعلان ہوا ہے 3 مطالبات کے ساتھ. پہلا مطالبہ کہ 26ویں آئینی ترمیم کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا جائے. دوسرا مطالبہ کہ ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کیا جائے. تیسرا مطالبہ کہ تحریک انصاف کے جتنے سیاسی لوگ قید ہیں, جو ناحق قید ہیں, ان کو رہا کیا جائے. اس میں عمران خان کی ذات کہاں انوالو ہے ان 3 مطالبات میں؟ ان 3 مطالبات میں انہوں نے اپنی ذات کی کیا بات کی ہے کہ وہ اپنے ذات کے لیے ڈیل مانگ رہے ہوں. جس طرح ماضی میں یہ پوری پارٹی کو چھوڑ کے جدہ چلے گئے, وہاں ڈیل کر لی, اور غیر ملکی طاقتوں کا استعمال کر کے ان کو انوالو کر کے ڈیل حاصل کی. آج مجھے بتائیں کہ عمران خان کا کیا پیغام آیا ٹرمپ کے الیکشن جیتنے کے بعد؟ انہوں نے بولا کہ میرا انحصار, میری بنیاد عوام ہے, میں عوام کے بنیاد پہ آؤں گا, ان کی بنیاد پہ تحریک چلاؤں گا, انہی کی بنیاد پہ میں جو ہے وہ نیگوسیشن کروں گا, کسی غیر ملکی طاقت کی بنیاد پہ نہیں کروں گا. کوئی ڈیل اس نوعیت کی نہیں ہوگی کہ باہر سے کوئی فون کال آ جائے. عوامی طاقت سے اگر ہوا تو ہوا, نہیں ہوا تو اسی انداز میں ہم ریزسٹ کریں گے. تو یہ بات بڑی ناجائز ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. رہی بات, ہم سیاسی ورکر ہیں, سیاسی ایکٹیویٹیز کرنا, پروٹیسٹ کرنا, اپوزیشن کرنا وہ ہمارا حق ہے. پرابلم یہ ہے کہ لا قانونیت اس لیول پہ ہے کہ میں پریس کلب پر آج کوئی احتجاج نہیں کر سکتا. پریس کلب جہاں دنیا آتی ڈیمونسٹریشن کے لیے, میں وہاں احتجاج نہیں کر سکتا. میں صاحب کا جھنڈا نہیں لے کے گھوم سکتا. ایک بین آرگنائزیشن کی طرح ہمیں ٹویٹ کیا جاتا ہے. تو یہ جب سلسلہ رہے گا تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ اب پچھلے ہفتے تمام ہاؤسز کے, یعنی سینٹ کے, نیشنل اسمبلی کے, تمام ہاؤسز کے, پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر گرفتار کیا, اور بے بنیاد وہ بانی پی ٹی آئی سے ملنے گئے. جب آپ یہ میسج دیں گے, عمران خان کو عوام ٹرسٹ کرتی ہے, اسی لیے 8 فروری کو نے فارم 45 شریعت حاصل کی. رہی بات تسلیم کرتے, آپ تسلیم نہیں کرتے, ہم آج عوام پہ کھڑے. رضا ہارون صاحب, ان کو میسج ٹھیک نہیں جا رہا, یہ بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ کیا میسج دے رہے ہیں. ہم پریس کلب کے اوپر تک تو احتجاج کر نہیں سکتے, ایک تو اس کو رسپونڈ کر دیجئے. دوسری بات جی بڑی امپورٹنٹ انہوں نے جو کی ہے, عالمگیر خان صاحب نے, وہ کیا ہے کہ بھئی جو بھی ان کے مطالبات رہتے ہیں نا کسی بھی معاملے پر, اس کے اندر تو بانی چیئرمین کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا. یہ تو صرف عوام کے لیے بات کرتے ہیں. سر کتنا دکھ درد ہے ان کو عوام کا. جی سر. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, ان کے 3 مطالبات میں نے اپنا نکال, لیکن پوری پارٹی, چاہے ریمن گنڈاپور کو آپ سن لیں کہ وہ ان کو رہا کرانے جا رہے ہیں, چاہے ان کی بہن علیمہ خان کو سن لیں, یا کسی بھی لیڈر کو آپ سن لیں, وہ یا شیخ وقاص کو سن لیں, یا سلمان راجہ کو سن لیں, وہ سب کا یہی ہے کہ ہم عمران خان کو رہا کرنے جا رہے ہیں. اور ٹھیک ہے, یہ مطالبہ کوئی بری بات نہیں ہے.
अगर इमरान खान की रिहाई के लिए, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए वो एहतजाज करना चाहते हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं, और सारे दूसरे लोगों की भी रिहाई होनी चाहिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आती, बेनिश के चंद रोज पहले मुझे इतना दुख हुआ, अफसोस हुआ मैंने जब शाहमहूद कुरैशी साहब को सुना, और उनकी जो एक वीलॉग आया है सोशल मीडिया पे, ये है कहानी पीटीआई की, कि सीनियर तरीन आदमी जो है वो अपने शिकवे, दुख और गम का इजहार कर रहा है कि भाई कभी हमसे मिलने भी आ जाया करो कोट लखपत जेल में, जहाँ ना सिर्फ मैं मौजूद हूँ बल्कि बेगम यास्मीन राशिद, महमूद रशीद साहब और इनकी जो दीगर वो क्या नाम है जो एक और सेनेटर एजाज साहब वो मौजूद है वहाँ, उनसे मिलने कोई भी नहीं जाता। ये पार्टी जो है ना ये तो आप सोचें जिनसे मिलने नहीं जा रहे उनकी राय की बात करेगा बानी, या उनकी राय के लिए सोच रहे होंगे। कितने अफसोस और दुख का इजहार करते हैं शाहमहूद कुरैशी साहब ने जो है वो बहुत ही ज्यादा अपने कर्ब के साथ वो बात की है जिसका हमें इजहार होना चाहिए। अब जहां तक बात है कि ये मुतालबात की, ये मुतालबात किससे हैं मुझे बताएं ना, ये मुतालबात हैं किससे कि 26 आईनी तरमीम वापस ले लें, हमारा मैंडेट वापस करते हैं, ये कौन करेगा, किससे हैं ये सब मुतालबात? ये रियासत से हैं, हुकूमत से हैं, एस्टेब्लिशमेंट से हैं, किसी सियासी पार्टी से हैं, किससे मुतालबात कर रहे हैं? इनको ये भी नहीं पता होगा। मैं आपसे चैलेंज करने को तैयार हूँ, ये हुकूमत से तो कर नहीं रहे होंगे, क्योंकि अगर ये हुकूमत से कर रहे हैं तो फिर झगड़ा किससे? एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहें भी तो गार्डियन की खबर में वो इंटरेस्टेड ही नहीं, वो नो इंटरेस्टेड का बोर्ड है। सफर अमेरिका की एब्सोल्युटली नॉट से शुरू हुआ था बीनेश, और वो अब वो चल रहा है एट योर सर्विस, यानी यूएस को जाके कांग्रेसमैन को, सेनेटर्स को, नए प्रेसिडेंट को ये मैसेज दे रहे हैं कि वी आर एट योर सर्विस, हमारा एक बंदा रिहा करवा। तो ये मेरा जाती ख्याल 24 नवंबर के हवाले से ये, और आज मैंने खबरों में सुना है, देखा है कि जो वजीर आला केपी हैं बदर मुनीर साहब, उनके जिस तरह के बयानात आते हैं ना, मैं कफन सर पे बांध के निकलूंगा, और ये आप इस्लामाबाद आ रहे हैं, सर आज तो अल जहाद के नारे लगे हैं सर, एक सूबा रियासत के खिलाफ ही अल जहाद कह रहा है सर, ये जरा ऐड कर लीजिएगा, ये बात तो बहुत पुरानी होगी ना, कफन शफन वाली बात तो पुरानी होगी, अब तो आज नया आया है ना अल जहाद। जी सर, ना जब आप कफन की बातें करेंगे, अल जिहाद की बातें करेंगे, तो मुझे बताएं कि आपके इंटेंशंस आर नॉट पीसफुल, आप पीसफुल प्रोटेस्ट करने नहीं आ रहे हैं। ये तमाम चीजें जो सवालात हैं इसके जवाबात इनको देने होंगे। खैर अभी हमारे साथ जो है ये तो इनको तो पार्टी लीडरशिप का इतना नहीं पता होगा, लीडरशिप से जो है आप मालूमात करें कि भाई आप ये रैली, ये एहतजाज, ये मुतालबात आप कर किससे रहे हैं? अगर हुकूमत से कर रहे हैं और आपने मुज़ाकराती कमेटी अनाउंस कर रखी है तो मुज़ाकरात कल कर लें, जलसे की क्या जरूरत है, जुलूस की क्या जरूरत है, रैली की क्या जरूरत है? हुकूमत तो तैयार है। वैसे रज़ा भाई ये जो आप बात कर रहे हैं ना, जलसे की क्या जरूरत है, जुलूस की क्या जरूरत है, मैं बल्कि ये सवाल आपसे करना भी चाहूंगी और आप ही से करना चाहूंगी, पीपल्स पार्टी से करना चाहूंगी, क्योंकि जो वफाकी वजीर ख़जाना है वो गालिबन कल या परसों बता रहे थे कि मईशत जो है वो मुस्तहकम हो रही है, महंगाई 38% से 7% पर आ गई है। सर अगर सब ऐसा चल रहा है, और क्रेडिट ऑफ कोर्स आपको जाता है क्योंकि सिंध में आप लोग की गवर्नमेंट है, प्लस विफाक के अंदर आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी सपोर्ट के बगैर शहबाज सरकार ये शायद अहदाफ इतनी जल्दी हासिल ना कर पाती, यू नो, सो यू आर पार्ट ऑफ इट। लेकिन जहाँ पर जब सब अच्छा चल रहा होता है, महंगाई भी नीचे आ रही है, आवाम को थोड़ा अवामी रिलीफ की बात हो रही है, ऐसे में पीटीआई को धरना एहतजाज क्यों याद आ जाता है? व्हाई डज दिस ऑलवेज हैपेंस? टाइमिंग इनकी हमेशा अनफॉर्चुनेटली कह लें, कोइंसिडेंटली कह लें, वो किसी ना किसी इंटरनेशनल इवेंट के साथ, कभी चीन के सदर आ रहे होते हैं, कभी मलेशिया का वजीर आज़म आए हुए होते हैं, कभी एससीओ की कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, अब चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, तो कोई ना कोई ऐसा इंटरनेशनल इवेंट हो रहा होता है, इससे पाकिस्तान को इंटरनेशनली सुरखरू होने का मौका मिल रहा हो, पाकिस्तान को इंटरनेशनली परफॉर्म करने का मौका मिल रहा हो। तो इसको कोइंसिडेंटली कह लेंगे, या जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं कि ये जानबूझ के ऐसा करते हैं कि ऐसे वक्त का इंतखाब करते हैं कि जब पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, मेरी अपनी एक राय है कि मुझे नहीं लगता 24 नवंबर को रैली शैली निकलेगी। जिस तरीके से मुज़ाकरात के लिए भी अंदिया दे दिया गया है और कमेटी अनाउंस कर दी गई है, किसी आज तक मैं सियासी वर्क करूँ भी नहीं, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी पार्टी ने रैली का अनाउंस किया हो और अभी रैली शुरू होने से पहले मुज़ाकराती कमेटी बना दी हो। रैली तो करी इसलिए जाती है कि सामने वाली पार्टी पे
प्रेशर डाला जाए, हुकूमत में प्रेशर डाला जाए कि हुकूमत ऑफर करे मुज़ाकरात की। यहाँ रैली भी निकाल रहे हैं और मुज़ाकरात की तैयारी भी कर रहे हैं, तो दे आर अ वेरी कंफ्यूज पॉलिटिकल पार्टी, बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड है, लीडरशिप के पास पॉलिटिकल सेंस नहीं है, इनके पास एजिटेशन का सेंस नहीं है, इनके पास डेमोन्स्ट्रेशन की अलिफ बे नहीं पता इनको। इनके जो ऐलानात हुए आप देखें ना, कितनी गैर संजीदा पार्टी है कि बानी ने अपने वकील को फैसल को मुंतखब किया जाके बाहर अनाउंस करने के लिए, ना चेयरमैन ने अनाउंस किया, ना सेक्रेटरी जनरल ने अनाउंस किया, ना इत्तलात का जो सेक्रेटरी उसने अनाउंस किया। एक वकील बाहर आके अनाउंस कर रहा है कि 24 नवंबर को, और फिर उसको सेकंड कर रही है उनकी बहन अलीमा खान। पूरी पार्टी माइनस हो, पूरी पार्टी माइनस। उधर शाह महमूद साहब माइनस है, इधर सारी पार्टी माइनस है। तो रजा भाई ट्रस्ट डेफिसिट भी तो हो सकता है ना। आप देखें वो अली अमीन गंडापुर साहब को 2-3 दफा कमान दी है, लेकिन वो पहुंच ही नहीं पाते, पता नहीं क्या वो गायब हो जाते हैं या कहीं गुम जाते हैं, तो मिसट्रस्ट भी तो हो सकता है ना, जरूरी तो नहीं लोगों पर मिसट्रस्ट है ना। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कंफ्यूज पार्टी है, डिसऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, और इनकी मास फॉलोइंग है। अब ऐसे लोग जब एक बड़ी रैली का अनाउंस कर देते हैं ना, तो चूंकि ये डिसिप्लिन नहीं है, तो वो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इनके अपने निजाम में किसी चीज का कंट्रोल नहीं है इनके हाथ में। डिस्ट्रस्ट आपने खुद बता दिया, केपी के अंदर देखे ना, आतिफ खान के गंडापुर के साथ झगड़े चल रहे हैं, पंजाब के अंदर झगड़े चल रहे हैं, सिंध तो इनके पास, सिंध की तो लीडरशिप इनकी नजर ही नहीं आती, है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। तो दिस पार्टी हैज गॉट मास फॉलोइंग, इसमें कोई शक नहीं है, बट मास फॉलोइंग के ऊपर सेकंड, थर्ड और फर्स्ट ईयर ऑफ लीडरशिप ही नहीं है इनके पास। राइट, आई एम श्योर कि आलमगीर खान साहब ने पॉइंट नोट कर लिए होंगे। आलमगीर साहब आप ज़रा थोड़ा सा वेट करें, मैं ज़रा नून लीग से भी बात कर लूँ कि उनका 24 नवंबर के हवाले से क्या लाहे अमल है, फिर आप इकट्ठे से ज़रा जवाब दे दीजिएगा, बता दीजिएगा दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि भाई नहीं, वी आर देयर और हमने ये करना है, क्योंकि रज़ा भाई को तो नहीं लग रहा, पीपल्स पार्टी को तो नहीं लग रहा कि 24 को कोई रैली होने वाली है। गौस खान न्याजी साहब, 24 नवंबर को आपका क्या प्लान है, क्या लाहे अमल होगा आपका? क्योंकि मुज़ाकरात का भी जैसे कि कह रहे हैं, क्या आप लोग मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेंगे, इनको बैठने देंगे, इनको बाहर निकलने देंगे, या आप इनको छोड़ देंगे इनको इनके हाल पे? देखिए पीनस, बात यह है कि एहतजाज करना जो है जमहूरी हक है, हर पाकिस्तानी का एहतजाज करें, लेकिन कानून के दायरे के अंदर रख के करें। अब जिस तरह की वो धमकियाँ जिहाद कर रहे हैं, और हम ये कर देंगे, वो धरना देंगे, डी चौक पहुंचेंगे, पॉइंट को डी चौक को ही पहुंचने देगा। ये पहले से भी अब तो जो जिस तरह की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, लोग निकलेंगे नहीं। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मुझे इस तरह में जो देख रहा हूँ कोई एक्टिव नजर नहीं आ रही। लोग परेशान है कि किस हमारा लीडर से वास्ता पड़ गया, मतलब लोग अंदर से, अब उधर जो लोग हैं बेचारे इतने खुद परेशानी की पार्टी के लोग छोड़ना चाहते हैं। वो तो हर चीज के ऊपर अपना डिफेंस और अपना बयानिया दे रहे हैं। नहीं, सिर्फ चंद लोग दे रहे हैं, वो भी आप जैसे फरमा रहे थे कि तो भाई साहब की जी, बाकी अधिक तो सिर्फ बानी पीटीआई को, और बानी पीटीआई किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर रहे। अमीन अली गंडापुर इतने ट्रस्ट करते थे, लेकिन फैसला उन्होंने जो 24 नवंबर को सुनाया, वो एक वकील के थ्रू सुनाया और बहन के थ्रू सुनाया। तो कंफ्यूजन पार्टी में है। लेकिन मैं एक बात मैं क्लियर कर दूं, बानी पीटीआई हो चाहे पीटीआई कह दो, कि इनको अगर कोई रिलीफ मिलेगा तो सियासी टेबल पे बैठ के मिलेगा, सियासी क़यादत इनको कुछ रिलीफ देगी। एस्टेब्लिशमेंट से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, चाहे ये बरतानिया में कम जॉनसन से जो उसने जो खत लिखा है फॉरेन मिनिस्टर को, या 40 सेनेटर ने जो बाइडन को खत लिखा है, कोई कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। और आज तक किसी हुकूमत ने, और ये फिर अवाम को तसल्ली ये देते हैं कि शायद उधर से प्रेशर आ गया पाकिस्तान पे इमरान खान के लिए, कोई प्रेशर किसी आज तक किसी हुकूमत ने कोई प्रेशर नहीं डाला। और ये खुद जो बाहर भी जाना चाहते हैं पीटीआई, लेकिन अभी तक किसी मुल्क के वो इसके रिकाफा नहीं की है। और वो चाहते हैं कि अगर हमने इनको इसको बुला लिया तो फिर हमारे लिए मसाइल खड़े होंगे। कोई इसकी जमानत देने को तैयार नहीं है, कोई इनकी पार्टी के अंदर बता जमानत देने को तैयार नहीं है। तो इससे बड़ी बदकिस्मती इस लीडरशिप की। अल जहाद का कहा जा रहा है सर, ये 24 नवंबर को जो इन्होंने अल जहाद की थीम रखी है सर, आपने कुछ तैयारी की है उसके लिए? मुझे बस ये बता दीजिए, बिकॉज आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द क्लोजर ऑफ द शो सर। हम उनको नहीं आने देंगे। डी चौक और दबा 144 नाफिज है, कानून हरकत में आएगा। और ये भूल जाए कि जान जो है बख्शी हो जाए कि नहीं, इस दफा पहले से ज्यादा सख्ती होगी। और इसी शायद हो सकता है अगर अली अमीन गंडापुर ने कोई मिसबिहेव किया तो उसके खिलाफ एक्सट्रीम एक्शन भी हो सकता है।
पहले बड़ी मुश्किल वो जान बचा के भागा इधर से मुनार से और किधर से जाके वटवा जाके भाग निकला है बाकियों को छोड़कर इस तरह। तो उससे शायद ये सब उससे भी सकती हो। और ये एक तरफ ये धमकी दे रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की भी बैकडोर से जो है डिप्लोमेसी है कि हमारे किस स्थिति के अली बिन खुद चाहता है कि 24 अक्टूबर को हमें न निकलना पड़े, मेरी जान छूटे। वो खुद चाहता है मैं 4-5 दफा कोशिश कर सका हूँ, ना मैं हुकूमत कर सकता हूँ, ना कोई रोजाना का यही मसला होता है। और पार्टी एक पेज पे है नहीं, हर पार्टी के अंदर बेशुमार ग्रुप बन चुके हैं। कोई लाहौर ग्रुप है, कोई पेशावर ग्रुप है, कोई इस्लामाबाद ग्रुप है, कोई बानी ग्रुप है, इस किस्म की ग्रुपिंग हो चुकी है। एक हजूम सा है, पार्टी तो ये रही नहीं। अब बानी पीटीआई के पास में भी कुछ नहीं है, किसी के कोई अपने तौर पर एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता है, कोई अपने तौर पर 30 बार खान समझता है कि मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं स्पीच आके वीडियो पैगाम जारी कर देते हैं, बस यही है। और एक सेंस नहीं फैलाने के लिए मकसद ये है कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। अगर रिहा नहीं होता तो फिर मुल्क में इतनी बेयकीनी सियासी फैलाई जाए ताकि मुल्क में ना कोई इन्वेस्टमेंट कर सके, ना मईशत का भी चल सके, और ना मुस्लिम लीग कि ये कोलिशन गवर्नमेंट है ये चल सके। बस यही एक है, पाकिस्तान जाए भाड़ में। ये तो पहले कहते हैं कि पहले जब खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। जब जिस पार्टी की ये सोचो तो उससे कोई अच्छी बात की तवक्को करना मेरे ख्याल है बड़ी ये खाम ख्याली होगी। तो हम कानून के मुताबिक निपटेंगे। हुकूमत इंशाल्लाह जिस तरह चल रही है चलती रहेगी, अपने प्रोग्राम के मुताबिक, अपने प्रोग्राम जो माशी प्रोग्राम है सारे वो चलते रहेंगे और इंशाल्लाह चल रहे हैं। IMF आया उसने बल्कि शाबाश दी है, बल्कि हैरानी जाहिर की है कि आप पाकिस्तान ने जितनी अपनी इशारे क्यों इस तरह कितनी जल्दी जो है वो ठीक ही है। तो इंशाल्लाह हम स्टॉक एक्सचेंज का भार देंगे 1 लाख को टच करने जा रही है। तो इससे कहाँ 23-24 हज़ार तक चली है और फिर किया है, तो कुछ काम हो रहा है तो तभी ये स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाए ना जी। महंगाई कितनी कम हुई है पंजाब में, और पंजाब में और बहुत सी किसानों को बड़ी सहूलतें दी जा रही है। ये 1.5 लाख के कर्जे और छोटे जो 15-15 लाख के कर्जे कंस्ट्रक्शन के दे रहे हैं, बेइंतहा काम हो रहा है, लोग बहुत खुश हैं इंशाल्लाह। सिर्फ प्रायोरिटी सेट कर ली है कि आप लोगों ने अभी गवर्नेंस और डिलीवरेंस के ऊपर जो है वो तवज्जो देनी है। आलमगीर खान साहब, अब आपने दोनों को रिप्लाई करना है, तो लुब्बे लुबाब बस यही है कि पीपल्स पार्टी को लगता है कि भाई इन तिलों में तेल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और नून लीग को भी ये लगता है कि अव्वल तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला, और अगर आप करने की कोशिश भी करेंगे ना तो इन्होंने आपको आने नहीं देना बाहर, ना डी चौक पे कुछ होगा ना कुछ होगा। सर कहीं ना आप लोगों ने अपनी रेपुटेशन खुद से बना लिया। ये जैसे बार बार नून लीग और पीपल्स पार्टी कह रहे हैं ना कि आप लोग पीसफुल नहीं रहते, अब अल जहाद के नारे लगाएंगे तो फिर कैसे इन लोग को यकीन आएगा कि यू आर गोना बी अ पीसफुल प्रोटेस्टर्स? देखिए, पहले तो वो कह रहे हैं कि ये पार्टी नहीं रही, इस पार्टी के ऊपर 1 घंटे का प्रोग्राम कर दिया। इन मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने जो है सारा अपने बयानात इस पार्टी पे दिए, वो कह रहे हैं कि पार्टी नहीं रही। देखें, हम अगर लोगों को मोबिलाइज करने में, लोगों को वहाँ इकट्ठा करने में लाखों की तादाद में कामयाब हो गए तो नेगोशिएशन, अगर इनमें थोड़ा सा भी जमहूरी तकाजे हों, इनमें थोड़ा सा भी इस मुल्क की रिवायात, इस मुल्क के लोगों का एहसास हो, तो ये नेगोशिएशन पे आएंगे, बातचीत पर आएंगे। अगर ये हटदर्मी करेंगे तो फिर मुझे बताएं ना, फिर कहाँ है जमहूरियत, कहाँ है आइन, कहाँ है कानून? क्या मैं पीसफुली असेंबल नहीं हो सकता इस मुल्क के किसी भी इशू के लिए किसी भी जगह पर? प्रॉब्लम ही है हम एहतजाज पे आते क्यों है। हमने पूरे 2 साल हमने अदालतों के दरवाजे खटखटाए। मुझे बताया हमारा इलेक्शन चोरी हुआ, एक सीट के ऊपर हम ट्राइब्यूनल में गए और आज तक हम इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे लोग उठाए जाते, अगवा किए जाते, उन पे तशद्दुद होता, हम अदालतों के दरवाजे खटखटाते और कुछ नहीं होता। जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम को यहाँ पास किया गया, कौमी असेंबली के मेंबरान को खरीदा गया करोड़ों रुपए में, उनको अगवा किया गया, उनकी 4 दीवारी तकद्दुस, उनके पर्दे की पामाली की गई। इस निजाम में मुझे बताए ना मैं क्या करूं? मैं जद्दोजहद, पीसफुल जद्दोजहद ही करूंगा। और इसीलिए हम बार बार एहतजाज की कॉल देते हैं कि शायद इनको एहसास हो जाए, शायद इनको समझ आ जाए कि अक्सरियत के साल में ये बात बार बार मईशत के इस्तेकाम की बात करते हैं। भाईजान, क्या आप इस मुल्क में नहीं रहते? क्या आपको नहीं पता कि डीजल पेट्रोल जो है 270 के करीब है? क्या आपको नहीं पता बिजली जो पिछले साल 24 रुपए फी 300 यूनिट थी, वो आज 37 रुपए फी 300 यूनिट पे पहुंच गई है?
क्या आपको नहीं पता डॉलर रेट इस वक्त का है? ये वो माइक्रो लेवल के इश्यूज है। ये आप जो चंद फिगर्स का खेल खेलते, ये खुदारा अवाम की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपकी प्रेजेंटेशन से। अवाम के लिए आज कारोबार, रियल स्टेट का कारोबार तबाह हो गया है, कोई बिजनेस साइकिल चल नहीं रहा, इन्वेस्टर मुल्क से बाहर भाग रहे हैं। जो यहाँ लाकानूनियत देखता, वो यहाँ देखता है कि कोई इदारा अपना काम नहीं कर रहा, कोई इदारा फंक्शनल नहीं है, तो क्या इन्वेस्टमेंट करेगा वो? ओवरसीज पाकिस्तान में आप खुद उनकी फैमिलीज को धमका रहे हैं, उनकी फैमिलीज को उठा रहे हैं, उनके एनआईसीज ब्लॉक कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो सबसे बड़ा आपकी बैकबोन है, रेमिटेंस भेजते, आप उनमें जो है डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये, अगर हम अवाम मोबिलाइज करने में कामयाब हो गए, नेगोशिएशन होंगे इंशाल्लाह, और मुल्क की बेहतरी भी होगी, और आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, हम भी यही हैं। और अगर मोबिलाइज ना कर सके फिर सर, एक तो आपने सिनेरियो बता दिया ना, और अगर ना मोबिलाइज कर सके, बंदे ना आए जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लग रहा है, फिर क्या होगा? फिर मायूसी कुफर है, हम दोबारा कॉल देंगे, दोबारा निकलेंगे, दोबारा जद्दोजहद करेंगे। यानी कि इसका मतलब है कि ये भी आपकी फाइनल कॉल नहीं है, इसके बाद भी एक फाइनल कॉल हो सकती है, ऐसा ही है ना? जब नहीं, फाइनल कॉल तो ये है, हमने घर वापस नहीं जाना, जद्दोजहद जारी रखेंगे, जद्दोजहद जारी रखेंगे। ठीक है, आखिरी 1 मिनट, रजा हारून साहब आप मुस्कुराए हैं, मुस्कुराने की वजह वो उनकी जद्दोजहद जारी, आप मुस्कुरा रहे हैं सर, ये अच्छा एटीट्यूड नहीं है सियासी, ये सियासी एटीट्यूड नहीं है सर, उनकी जद्दोजहद के ऊपर आप मजाक ना उड़ाएं सर। मुज़ाकरात के लिए करना है तो मुज़ाकरात तो कर सकते हैं बगैर रैली के, हुकूमत तो तैयार है, हुकूमत ने कब मना किया? ठीक है, लेट्स सी, आज 18 नवंबर है और देखते हैं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत ना क्या लाहे अमल 24 नवंबर के हवाले से सामने रखती है। आज के लिए इतना ही, आप सब लोगों के फीडबैक का इंतजार रहेगा। मेहमानों का शुक्रिया, कल मुलाकात करते हैं, सेम टाइम सेम चैनल। अल्लाह हाफिज़।